بلاول بھٹو نے وزیراعظم عمران خان کو سوشل میڈیا کا وزیراعظم قرار دے دیا۔ سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ خورشید شاہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو سوشل میڈیا کا وزیراعظم قرار دے دیا۔ سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ خورشید شاہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ملک پر ایک ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کمیشن رپورٹ کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، اب انکوائری کمیشن کو شائع کرنا لازمی ہے۔ یہ کون سا کارنامہ تھا؟ جی ہاں، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک پر ایک ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کمیشن رپورٹ کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، اب انکوائری کمیشن کو شائع کرنا لازمی ہے۔ یہ کون سا کارنامہ تھا؟ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملک پر ایک ٹولے کو مسلط کیا گیا، کہا جاتا ہے لیکن کمیشن رپورٹ کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، اب انکوائری کمیشن کو شائع کرنا لازمی ہے۔ یہ کون سا کارنامہ تھا؟ مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کو چینی آٹا مافیا کا جعلی ترجمان قرار دے دیا۔ کہتی ہیں عمران خان نے ہی چینی برآمد کرنے کے لیے سبسڈی دینے کی ہدایت دی، عمران خان مافیا نے ہی چینی چوروں کو بچانے کے لیے انکوائری کمیشن بنایا۔ چینی چور مافیا نے ہی جہانگیر ترین کو پرائیویٹ جیٹ پر فرار کرا دیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کو چینی آٹا مافیا کا جعلی ترجمان قرار دے دیا ہے۔ عمران خان نے ہی چینی برآمد کرنے سبسڈی دینے کی ہدایت کی ہے۔ مزید کہتی ہیں عمران خان مافیا نے ہی چینی چوروں کو بچانے کے لیے انکوائری کمیشن بنایا ہے۔ چینی چور مافیا نے ہی جہانگیر ترین کو پرائیویٹ جیٹ پر فرار کرا دیا۔ دوسری جانب کلبھوشن کے حوالے سے سلیکٹڈ حکومت کا خفیہ آرڈیننس ناقابل برداشت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے خفیہ آرڈیننس پر جواب اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلاول نے کلبھوشن یادو کے حوالے سے آرڈیننس کی کاپی ٹویٹر پر بھی شیئر کر دی۔ خفیہ آرڈیننس وزیراعظم کے جانے کی ایک اور وجہ ہے۔ بلاول بھٹو کا اس حوالے سے بیان آیا ہے، کہنا ہے کہ کلبھوشن کے حوالے سے سلیکٹڈ حکومت کا خفیہ آرڈیننس ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ خفیہ آرڈیننس پر جواب اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلاول نے کلبھوشن یادو کے حوالے سے آرڈیننس کی کاپی بھی ٹویٹر پر شیئر کر دی ہے۔ خفیہ آرڈیننس وزیر اعظم کے جانے کی ایک اور وجہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے صورتحال بہتر ہوئی، بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں کورونا کے مریضوں اور اموات میں اب کمی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عوام عید قرباں پر SOPs پر مکمل عمل کریں، عید الاضحیٰ سادگی سے منائی جائے گی۔ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں کورونا کے مریضوں میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے صورتحال اب بہتر ہوئی ہے، بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں کورونا کے مریضوں اور اموات میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا عوام عید قرباں پر SOPs پر مکمل عمل درآمد کریں، عید الاضحیٰ سادگی سے منائی جائے۔ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں کورونا کے مریضوں میں کمی ہوئی ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ 149 فلور ملز گندم کی چوری میں ملوث پائی گئی ہیں۔ ملزمان سے 190 ملین کی ریکوری کی گئی۔ شوگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ -1 کی خواہش پنجاب میں پوری ہو سکتی ہے، نہ ہی اسلام آباد میں۔ میاں صاحب کی جان نہیں چھوٹنی، ری ٹرائل بھی ہو گیا تو احتساب عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر کمیشن رپورٹ پر اسٹے خارج ہونے کے بعد اقدامات کرنے ہیں۔ حکومت نے نیب کو ریفرنس بھیج دیا ہے۔ شوگر سیل معاملے کی تحقیقات کا اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک شوگر سیل معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 860 روپے ہے۔ وزیر اعظم آٹے سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اجلاس کی صدارت کرتے ہیں۔ کسی حکومتی بندے کے بغیر ملز ایسا نہیں کر سکتی۔ محکمہ خوراک کے 156 افراد گندم کی چوری میں ملوث تھے۔ محکمہ خوراک کے 156 افراد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ 60 سے 70 سرکاری افراد براہ راست ملز کے ساتھ ملوث ہیں۔ حکومتی سبسڈی کے تحت 667 آٹا ملز کو گندم فراہم کی گئی۔ سیالکوٹ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل بارے نیب کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ वक्त से पहले ही नैब ऑफिस पेश हो गए। नायब हुक्काम ने ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटा पूछताछ की। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में उनकी और अहले खाना की सरमायाकारी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के जराए भी पूछे गए, जिससे मुताल्लिका कुछ दस्तावेजात लीगी रहनुमा ने नैब को फराहम भी की। नैब जराए का यह कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया के मिली भगत से 137 किनाल की मंजूरी ली और जायद जमीन फरोख्त की। इंतजामिया के मिली भगत से इन शहरियों की जमीनों पर कब्जा किया गया जिन्होंने कभी सोसाइटी को जमीन फरोख्त नहीं की। डीजी रेंजर्स सिंध का खारादर और दरखशां पुलिस स्टेशंस का दौरा, पुलिस के आला हुक्काम को डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स ने क़याम अमन में सिंध पुलिस की खिदमात को भी सराहा है। डीजी रेंजर्स सिंध का खारादरा और दरखशां पुलिस स्टेशंस का दौरा, पुलिस के आला हुक्काम की डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स ने क़याम अमन में सिंध पुलिस की खिदमात को सराहा। डीजी रेंजर्स सिंध का खारादर और दरख्शां पुलिस स्टेशंस का दौरा, पुलिस के आला हुक्काम की डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग दी गई। डीजी रेंजर्स ने क़याम अमन में सिंध पुलिस की खिदमात को सराहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 34 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। जी हां, इंटर मार्केट में डॉलर 34 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से 1,60,86,000 डॉलर से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शंस में रकम मुंतकिल की। तमाम ट्रांजैक्शंस 2007 और 2008 में सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। आपको बताएं कि तफसीलात टीवी टुडे ने हासिल कर ली। अकाउंट्स की तफसीलात फिर सामने आ गई और अब शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से 1,60,86,000 डॉलर से ज्यादा की रकम मुंतकली की स्टेटमेंट सामने आई है। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शन में रकम मुंतकिल की। तमाम ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 में सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आज मंजूर पापड़वाला सामने आ गया। मंजूर पापड़वाला ने शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में 12 ट्रांजैक्शंस की हैं। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लूटमार एसोसिएशन इल्जाम तराशी कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था उस्मान बुज़दार फड़कने थड़कने के बाद पंजाब की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला सामने आया है। भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गुज़िश्ता रोज भारतीय सिफारतकार कुलभूषण की बात सुने बगैर ही चले गए। कुलभूषण उन्हें पुकारता ही रहा। भारत की बदनीयती खुल गई, ये रसाई नहीं चाहते थे। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण के तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला सामने आया है। भारतीय हुक्काम को आगाह भी कर दिया गया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गुज़िश्ता रोज भारतीय सिफारतकार कुलभूषण की बात सुने बगैर ही चले गए और कुलभूषण उन्हें पुकारता रहा। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ गई, ये रसाई नहीं चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को रावी किनारे नया शहर बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म कपड़े के बैनुल-अक़वामी ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाएंगे। वज़ीर आज़म को सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगी। बाजौड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तान हुदूद में फायरिंग से 3 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज के 2 जवानों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग। बाजौड़ में सरहद पार से फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज के 2 जवानों समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
बाजोड़ का खित्ता जंग एतबार से अहम है, यूं हमसायों में कशीदगी का बायस भी बना रहता है। जन्नत नजीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेज ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। आजादी, मर भी कहलाता हूं आजादी, मेरे कफन पे लिखना आजादी। जन्नत नजीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेस ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, मज़ामत पर भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला कलगाम में कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। वादी आजादी के नारों से गूंज उठी। मुल्क की तारीख में एक और संगे मिल उबूर कर लिया गया। दयामिर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल हो चुका है। डैम की तामीर के लिए मुकामी वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुल्क की तवानाई की तारीख में एक और संगे मील अबूर। दयामिर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल हो गया। डैम की तामीर के कॉन्ट्रैक्ट में FWO 30% का शराकतदार। डैम की तामीर के लिए मकामी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। डैम की बुलंदी 272 मीटर और 14 स्पिलवेज तामीर किए जाएंगे। डैम से सस्ती बिजली पैदा होगी, जिससे 270 अरब की इजाफी बचत मुतवक्के है। अहम खबर देते हैं आपको। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंट्स की निशानदेही पर पकड़ा गया। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है और उसे सदर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। खुफिया नेटवर्क से मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। एक और बड़ी कार्रवाई FIA की सामने आई है। FIA इंसदाद दहशतगर्द विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंट्स की निशानदेही पर पकड़ा गया है। कराची में कलदम BLA के सहूलतकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात पर CTD ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। लियारी, बलदिया और मुशर्रफ कॉलोनी में स्लीपर सेल्स की मौजूदगी की इत्तलात हैं। दहशतगर्द सुलेमान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैकी की थी। सुलेमान के साथ दीगर 3 दहशतगर्दों को अंदर का रास्ता मालूम नहीं था। CTD का कहना है कि सुलेमान के फौरी हलाक होने के बायस दहशतगर्दों का प्लान फेल हो चुका था। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, कराची में कलदम BLA के सहूलतकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात पर CTD ने हतमी रिपोर्ट तैयार की है। लियारी, बलदिया और मुशर्रफ कॉलोनी में स्लीपर सेल्स की मौजूदगी की इत्तलात हैं। दहशतगर्द सुलेमान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैकी की थी। सुलेमान के साथ दीगर 3 दहशतगर्दों को अंदर का रास्ता मालूम नहीं था। CTD का यह भी कहना है कि सुलेमान के फौरी हलाक होने के बाद दहशतगर्दों का प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 49 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5475 हो गई। मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 2,60,000 हो चुकी है। 1895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,83,737 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 49 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1922, पंजाब में 2069, खैबर पख्तूनख्वा में 1124, बलूचिस्तान में 128, गिलगित बल्तिस्तान में 39, आजाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 89,023, सिंध में 1,10,068, खैबर पख्तूनख्वा में 31,486, बलूचिस्तान में 11,385, गिलगित बल्तिस्तान में 1,775, इस्लामाबाद 14,454, आजाद कश्मीर में 1,808 मरीज हो चुके।
दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,93,000 हो गए। 82,85,000 मरीज सेहतियाब भी हुए। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,41,118, ब्राजील में 76,822, रूस में 11,937, भारत में 25,609, टर्की में 5,440, ईरान में 13,608, अफगानिस्तान में 1,113 और सऊदी अरब में 2,370 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,119, इटली में 35,017, स्पेन में 28,416 और फ्रांस में 30,138 हलाकतें हुई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। कोरोना की अद्वियात नायाब होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। इसी पर देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना अद्वियात की अदम फरहमी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में हुकूमती वकला की खूब क्लास ली और सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया। दरखास्त गुजार की अद्वियात की अदम दस्याबी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे बारे निशानदेही। लाहौर में चीनी एक बार फिर नायाब हो गई है। ईद उल अजहा के आते ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से चीनी 84 रुपए फी किलो मिल रही है। 70 रुपए कैसे फरोख्त करें? तफसीलात जानेंगे अली तारिक से। जी अली तारिक। जी, इस वक्त हम लाहौर के बरकत मार्केट बाजार में मौजूद हैं। चीनी जो है एक बार फिर नायाब हो गई है। हमारी दुकानदार से बात हुई है, उनका ये कहना है कि चीनी जो है पीछे से 85 रुपये तो हमें मिल रही है, तो हम 70 रुपये जो है वो कैसे बेचें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने आज जो रेट लिस्ट जारी की है उसमें भी चीनी की जो कीमत है वो नहीं डाली गई। मैं आपको बताऊँ कि पहले जो है आटे का बुढ़ान था, चीनी का बुढ़ान था, फिर चीनी का जो मसला है हल हुआ, लेकिन एक बार फिर जो है चीनी की कीमत जो है 70 रुपये लगाई गई है हुकूमती, लेकिन मिल नहीं रही। शहरी जो है परेशान है। हमारी यहाँ शहरियों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि हुकूमत जिस चीज़ का नोटिस लेती है वो महंगी हो जाती है। लेकिन दुकानदारों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर हम चीनी 70 रुपये हम नहीं बेच सकते क्योंकि 85 रुपये पीछे से मिल रही है। अगर हम महंगी करके बेचेंगे तो ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं 262 पायलट्स के लाइसेंस में बेज़ाब्तियां पाई गईं। कुछ पायलट्स के 8 इम्तिहान उनकी जगह और लोगों ने दिए। जी हाँ, विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने एक इंटरव्यू में कहा 28 पायलट्स को चार्जशीट के बाद बरतरफ किया जा चुका है। शोकॉज नोटिस वजाहत में कुछ पायलट्स ने एतराफ भी किया। पायलट्स की तहकीकात गुज़िश्ता साल फरवरी से चल रही थी। तहकीकात में 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक पाए गए। 174 पाकिस्तानी पायलट्स गैर मुल्की एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। 166 पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक कर दी गई है। ऑडिट के बाद दुनिया को खुद अपने पायलट्स की खिदमत पेश करेंगे। गुलाम सरवर खान ने बताया कि PIA पर 2007 से 2009 तक यूरोप में पाबंदी रही। पायलट्स के मामले पर यूरोपियन वजारत खारजा से राब्ते में है। अगर गलत काम हो चुका है तो क्या अपनी गलतियों का एतराफ न करें? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। एहतजाज की धमकियों से कोई खतरा नहीं। इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होना है। सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ 2023 का इंतजार करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से PTI से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि इमरान खान अपनी ज़ात नहीं मुल्क कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। चौधरी सरवर का कहना था कि हम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, मेरिट पर काम कर रहे हैं। माजी की मनपसंद तयनातियों की वजह से इदारे तबाह हुए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं किसी करप्ट अहलकार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस और इंतजामी अफसरान को फ्री हैंड दे दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में पौधा लगाया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की।
वज़ीर आला का कहना था कि शजरकारी आइंदा नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। अवाम में शजरकारी की अहमियत का शऊर बेदार करना है। पौधे की देखभाल और हिफाजत भी खुसूसी तवज्जो चाहती है। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली, अमायदीन, कारकुनों और शहरियों से मुलाकात की। सरदार उस्मान बोजदार ने लोगों के मसाइल सुने, दरखास्तें वसूल की और मौके पर ही अहकाम जारी किए। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हर शहर जाऊंगा। दौरे करने से ही ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही हासिल होती है। साजिशी अनासर की तरक्की के सफ़र में रुकावट डालने के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ारत दाखिला ने सिंथिया डिरीची को क्लीन चिट दे दी है। कहा, अमरीकी खातून गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। अमरीकी शहरी सिंथिया को डिपोर्ट करने से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिया गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। गैर मुल्कियों के वीज़ों में 31 अगस्त तक तौसीह की गई थी। I would say in the United States, the petitioner and the respondents are always available to offer comments. So I find it quite strange that the petitioners in this particular case and subsequent cases, previous cases, have not been available for comment, and yet here we are. The Ministry of Interior has made its decision to extend my visa as per law, and I look forward to continuing the cases and putting full faith in my team. और अब आपको बताएं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों पर नैब रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी की शनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि आसिफ जरदारी घर हों या हस्पताल, वीडियो लिंक का इंतजाम करें। 4 अगस्त को आसिफ जरदारी समेत 14 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब कराची आसिफ जरदारी की अदालत हाजिरी यकीनी बनाए। और अब इलाकाई खबरें। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी ने डीपी ऑफिस के लॉन में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि थाना सदर ओकाड़ा पुलिस की सरगना समेत 5 मुलजमान की गिरफ्तारी एक बड़ी कार्रवाई है। जी हां, एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी ने मजीद बताया कि सदर थाना की हुदूद में डकैती वारदातों की रिपोर्ट थी, जिस पर एसडीपीओ मोहम्मद सलीम रथ की मॉनिटरिंग और एसएचओ राना इमरान अली टीपू की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई, जिसने एक हफ्ता के शबो रोज की मेहनत के बाद नवीदी गैंग के सरगुना नवीद उर्फ नवीदी, बाबर आदिल, हमाद और शाहिद मंजूर, जो कि साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुलजिम एहसन मफरूर है। मुलजिमान से 71,50,000 रुपए मालियत का लूटा हुआ माल बरामद कर लिया गया, जिसमें 2 अदद मोटरसाइकिलें, नकदी और दीगर सामान शामिल है। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद हुआ है। तमाम मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता है। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी ने कहा कि जिला भर की पुलिस ने दस्तयाब वसाइल से अवाम को खिदमात फराहम करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका में मुजाहरे न रुक सके। ब्रुकलिन ब्रिज में झड़पे, न्यूयॉर्क पुलिस के चीफ समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। 40 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार भी हुए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर पुलिस के हक और मुखालफत में होने वाले एहतजाज के मुजाहिरीन आपस में झगड़ पड़े। पुलिस ने मुदाखलत की तो मुजाहिरीन के साथ तसादुम में न्यूयॉर्क पुलिस महकमा के सरबराह समेत 4 एहलकार सर पर लाठियां लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने 40 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। और अब टुडे स्पोर्ट्स। मुल्क भर के क्रिकेट ग्राउंड्स कोरोना वायरस के बायस वीरान। कोरोना वायरस और बोर्ड की जानिब से 8 माह से तनख्वाह न मिलने के बायस ग्राउंड में माशी बदहाली का शिकार हो गए। जी हां, ग्राउंड स्टाफ ने बोर्ड हुकाम से मामले को हल करने की अपील कर दी है। इस हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे सना अरशद की ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस और बोर्ड की जानिब से 8 माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस ग्राउंड मैन माशी बदहाली का शिकार हो गए। मुल्क भर के क्रिकेट ग्राउंड्स तो 15 मार्च से कोरोना वायरस के बायस वीरान हुए, मगर इन ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के 250 अरकान दिसंबर 2019 से तनख्वाहों से महरूम। इस मुश्किल सूरत हाल में ग्राउंड स्टाफ के घरों में भूख ने डेरे डाल दिए। सर क्या चल रहा है, बस कभी दिहाड़ी लग गई कभी ना लगी, जो है ना कि इस तरह का चल रहा है। हफ्ते में एक आधी दिहाड़ी लगती है तो उसमें क्या गुजारा होता है। मैं वैसे भी सर आउट ऑफ सिटी हूँ, जो है ना मुझे तो यहाँ पर रहना तो मजबूरी है, क्या करें जो है। पिछले 13-14 साल से मैं जो है ना मुलाजमत कर रहा था लाहौर रीजन में, और दिसंबर के महीने से बोर्ड ने ना हमें फारग कर दिया। हमें इन्होंने यही कहा था कि जी हम नया सेटअप बना रहे हैं, वो आके आपको लुक आफ्टर करेगा सारा कुछ, लेकिन 7 माह हो गए हैं, अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। हमारे बच्चे फाकों से मर रहे हैं। 25 साल से बतौर ग्राउंड्स मैन खिदमत अंजाम देने वाले शौकत अपने हालात बताते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं घर में बच्चों के पास कपड़े तक नहीं। सर ये कोरोना तो अब शुरू हुआ है, इन्होंने हमें 8 माह से इन्होंने फारग किया हुआ है। लिहाजा मेरी पीसीपी से वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि खुदाया हमारे बच्चों का कुछ करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई कारोबार नहीं है, उतनी देर से हम फारग हैं और घर में कोई फाके चल रहे हैं इस टाइम। ज़रा जितने आप समझ लें कि घर में बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है। ग्राउंड स्टाफ ने पीसीबी अहकाम और खिलाड़ियों से अपील की कि इनकी मदद की जाए। ग्राउंड स्टाफ ने गुज़िश्ता रोड बोर्ड के पैटर्न वज़ीर आज़म को खत लिखकर अपने मसाइल हल करने की अहकाम जारी करने की अपील की है। कैमरामैन अबू बकर के साथ सना अरशद, टीवी टुडे लाहौर। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट। फिल्म, टीवी और थिएटर के वर्सटाइल अदाकार अलबेला की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हाजी अलबेला ने अपने फनी करियर के दौरान फिल्म, टीवी और थिएटर पर अदाकारी के जौहर दिखाए और भरपूर शोहरत हासिल की। टोपी पुठी करके पाओ ना, फिर मुंह ते धुप ना पएगी ते मुंह वड्डा किवें होएगा। हां ए जी छां दे नाल ए मुंह छोटा रह गया ना। हां ए मुंह वड्डा ए केस ते फिर मैदान ची होया। अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला 21 सितंबर 1939 को गोजरा में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तानी स्टेज और फिल्म में अलबेला के नाम से शोहरत पाई। अलबेला ने 70 की दहाई में पहले स्टेज फिर फिल्म में अदाकारी शुरू की और टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अलबेला ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अलबेला दिल का दौरा पड़ने से 17 जुलाई 2004 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। और एक्शन के दीवाने हो जाएं तैयार।